Now, I would like to discuss in brief about some of the general points that you need to keep in mind as to when you need to take objections with regard to admissibility. देखिए, as a general rule and ordinarily an objection to the admissibility of evidence should be taken when it is tendered in evidence but not thereafter. अब किस तरीके के ऑब्जेक्शंस विद रिगार्ड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, एन ऑब्जेक्शन दैट द डॉक्यूमेंट विच सॉट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ इनएडमिसिबल इन एविडेंस, एंड दूसरा, where the objection does not dispute the admissibility of the document but is directed towards the mode of proof alleging the same to be irregular or insufficient. अब पहले केस के डॉक्यूमेंट को लेके where the objection is that the document sought to be proved is itself inadmissible, in that case merely because a document has been marked as an exhibit, an objection as to its admissibility is not excluded and is available to be raised even at the later stage or even in an appeal and revision. याद रखिएगा, क्योंकि inadmissible document को अगर exhibit बनाया गया है तो in that situation objection as to its admissibility is not excluded and is available to be raised even at the later stage or even in an appeal or revision. However, in the second type of cases where the objection does not dispute the admissibility but is directed towards the mode of proof alleging the same to be irregular or insufficient, then in that situation the objection should be taken before the evidence is tendered. And once the document has been admitted in evidence and marked as an exhibit, the objection that it should not have been admitted in evidence or that the mode adopted for proving the document is irregular cannot be allowed to be raised at any stage subsequent to the marking of the document as an exhibit. This proposition is due to a rule of fair play. The crucial test is whether an objection, if taken at the appropriate time, would have enabled the party tendering the evidence to cure the defect and resort to such mode of proof as would be regular. अब देखिए, सिर्फ मोड ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं हम, उसके ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं. देखिए, एज अ जनरल रूल mere marking of a document as an exhibit would not exclude the objection to its inadmissibility if the document which is sought to be proved is itself inadmissible. However, when the objections are taken regarding the mode of proof, then usually such objection should be taken before the document is tendered in evidence, or in other words, it should not be raised at any stage subsequent to marking of the document as an exhibit. This is because of a rule of fair play. The crucial test is whether the objection, if taken at the appropriate point of time, would have enabled the party tendering evidence to cure the defect and resort to such mode of proof as would be regular. The omission to object becomes fatal because by his failure, the party entitled to object allows the party tendering the evidence to act on the assumption that the opposite party is not serious about the mode of proof. On the other hand, a prompt objection does not prejudice the party tendering the evidence for two reasons. Firstly, it enables the court to apply its mind and pronounce its decision on the question of admissibility then and there. And secondly, in event of the finding of the court on the mode of proof sought to be adopted, which is going against the party tendering the evidence, the opportunity of seeking indulgence of the court for permitting a regular mode or method of proof and thereby removing the objection raised by the opposite party is available to the party leading the evidence. इस बात पे एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जनरली ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो फाइनल स्टेज पे ही डिटरमाइन करने चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, जैसे कि स्टैम्प एक्ट के स्टैट्यूटरी बार में कि अगर डॉक्यूमेंट अनस्टैम्प्ड है देन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. तो जब तक वो ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा आगे नहीं बढ़ता है. लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ट्रायल कोर्ट्स को कि वो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर ले, और जब पूरा एक बार सारा एविडेंस चीज़ें कलेक्ट हो जाए तो एकदम लास्ट स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे वो डिसाइड करें. ठीक है.
ना, डिपेंड्स की ऑब्जेक्शन किस नेचर का है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप फाइनल स्टेज पर डिसाइड करिए, लेकिन छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैं जो तुरंत डिसाइड हो सकते हैं। इन दैट सिचुएशन द डिस्कशन इज़ विद द ट्रायल जज टू कीप इट एट द फाइनल स्टेज और टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन देन एंड देयर। और एक और रीज़न है कि जब मोड ऑफ प्रूफ पे ऑब्जेक्ट नहीं किया जाता and there is a failure to raise a prompt and timely objection, then it would amount to waiver of the necessity for insisting on formal proof of a document, the document itself which is sought to be proved being admissible in evidence. क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी होती है, जो सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट खुद में एडमिसिबल होता है पर फॉर्मली प्रूव नहीं हुआ है या फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इरेगुलरली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टीज होती हैं, if they do not object, then in that situation it would amount to waiver of the necessity for insisting on formal proof of the document. ठीक है, लेकिन once again I'll reiterate, लेकिन in the first case where the objection that the document which is sought to be proved is inadmissible, तो उसमें merely marking that document as an exhibit would not first of all be treated as evidence. Second of all, objection to its admissibility is not excluded and it is available to be raised at even at the later stage or even in appeal or revision. And let us suppose even if the party acquiesces in such cases that okay, I have no problem you introducing an inadmissible document in the court, that would be again no bar to raising the objection in the superior court, because what has been rendered inadmissible by law would remain inadmissible and no amount of agreement between the parties or no level of waiver or acquiescence can make such document admissible. ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जैसे एक इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था पीसी पुरुषोत्तम रेड्डी वर्सेस एस पेरुमल। अब इसमें पुलिस रिपोर्ट्स वर एडमिटेड इन एविडेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और फिर अपील पे पहली बार ऑब्जेक्शन लिया गया विद रिगार्ड टू देयर एडमिसिबिलिटी। अब काउंसिल का कहना था, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे सबसे पहली बार अपील में, उनका कहना था कि पुलिस रिपोर्ट्स इनएडमिसिबल हैं क्योंकि हेड कांस्टेबल जिन्होंने वो मीटिंग्स कवर की हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड इन द केस। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, रिकॉर्ड्स देखे और देखा कि उन रिपोर्ट्स को जो मार्क किया गया था दैट वाज मार्क्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ट्रायल कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया, इसका मतलब इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज थी, ट्रायल की स्टेज थी, वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ इट इज़ नॉट ओपन फॉर यू टू ऑब्जेक्ट टू देयर एडमिसिबिलिटी एंड यू कैन अंडरस्टैंड वाई। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज what the council is saying that the introduction of such police report has been in an irregular manner, because usually such reports are required to be formally proved, but it is nowhere laid down in law that such report is inadmissible, है ना? So in that situation the objection merely remained to the level of mode of proof, and since it was not taken at the court of first instance, then it was not allowed to be taken at the later stage. याद रखिएगा, इसे सेकंड कैटेगरी ऑफ द केसेस के लिए है। ये यूजुअली मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादातर लोगों को, लेकिन आप लोग को बता दिया, सो आप इस बात को लेके अवेयर रहे। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर और राइटिंग किन किन मेथड से प्रूव की जा सकती है। ठीक है, पहला मेथड है बाय कॉलिंग द पर्सन हु साइंड एंड रोट द डॉक्यूमेंट, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सेकेंडली by calling a person who was present when the document was written and signed, मतलब attesting witness. Third is by the means of an handwriting expert, section 45 of the Indian Evidence Act. Fourth is by a proof of admission of the person who is alleged to have signed and written a document. Fifth is by the means of comparison of the disputed signature and the handwriting with the admitted signature or handwriting by the court, that is section 73. Sixth is by the use of circumstantial evidence. Seventh is by evidence of a person acquainted with the handwriting of the writer, section 47. And eighth is by the statement of a deceased professional scribe made in ordinary course of business that the signature and document is that of a particular person. ये section 32 के clause 2 में आता है।
ठीक है, ये मोड्स अवेलेबल है। अब किन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस किन सिचुएशंस पे अप्लाई करेंगे, कौन सा मोड यूज़ होगा, वो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से पता चलेगा। ठीक है, बट ओवरऑल ये 8 ही तरीके होते हैं। इनमें से आपको उन सेक्शंस का ध्यान रखना है जो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब सेक्शन 73 पे आ जाते हैं। इट सेज कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। दिस सेक्शन सेज in order to ascertain whether a signature writing or seal is that of a person by whom it purports to have been written or made, any signature writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved. तो यहाँ पे comparison main keyword है। Although that signature writing or seal has not been produced or proved for any other purpose, the court may direct any person present in the court to write any words or figure for the purpose of enabling court to compare the words or figure so written with any words or figures alleged to have been written by such person. This section also applies with necessary modifications to finger impressions. Fingerprints पे भी अप्लाई करता है। अब इससे एक मिलता जुलता प्रोविजन है सेक्शन 311A CRPC का। It says the power of the magistrate to order a person to give specimen signature or handwriting. I wanted to discuss this in context of section 73 of the Indian Evidence Act, क्योंकि ये बड़ा मिलता जुलता है और ये थ्रू अमेंडमेंट आया है। So section 311A says that if a magistrate of the first class, देखिए मतलब ये JMFC के ही पास पावर है या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास, not with the magistrate of second class. This power is available only to the magistrate of first class or above. So, if the magistrate of first class is satisfied for the purpose of investigation or proceeding under this code, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give specimen signatures or handwriting. He may make an order to that effect, and in that case the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order and shall give his specimen signature and or handwriting, provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with investigation or proceeding. Now, subject to the rules made by state government, any criminal court may, if thinks fit, order, अच्छा ये तो दूसरा वाला सेक्शन है, सो जस्ट इग्नोर इट। यहाँ पे बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेक्शन 311A ये कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज़ द पावर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर CRPC to direct any person, including an accused person, to give specimen signature or his handwriting, provided that he should have been arrested in connection with such investigation or proceeding. So, the arrest is a precondition to exercise the power under section 311A. अब ये CRPC में एक टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है while you are talking about section 73। ऐसे आपका जो इंटरलिंकिंग है अच्छा होता है और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। इट मीन्स दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट मोर देन अ सिंगल सब्जेक्ट। तो अब देखिए, अब हम आते हैं एक इशू पे जो सेक्शन 73 और 311A में भी आपको लग रहा होगा कि ये जो स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन जो 73 में, ये कहीं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू औगड़, डिसाइडेड ऑन 4 अगस्त 1961। अब इस केस में सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 5 and 6 ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ये सारी चीज़ें वर इन इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट, अलॉन्ग विद द इशू दैट does taking of the photograph, finger impression, footprint impressions, or comparison of handwriting under section 73 of the Indian Evidence Act
रेड विद सेक्शन 5 and 6 ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, जहाँ पे फोटोग्राफ प्रिजनर्स का लिया जा सकता है, फुट का साइज मेजर किया जाता है, एक्सेट्रा, ये सारे लिए जाते हैं, फिंगर इंप्रेशन लिए जाते हैं, एक डॉजियर तैयार किया जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये कहा जा सकता है इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, क्योंकि ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग टेस्टिमनी में जाना चाहिए। अब आर्टिकल 20 सिंपल शब्दों में ये कह देता है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग टेस्टिमनी इज बैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको रिकवरी स्टेटमेंट से याद होंगे, रिकवरी स्टेटमेंट चैलेंज हुआ था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में, बट एट दैट टाइम इट वाज चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काली काठू औगड़ में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी दैट वाज चैलेंज अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। क्योंकि देखिए देवमन उपाध्याय ने आंसर दिया था कि इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, बट the question whether it is violative of article 20 or not, that was an open question that was answered in in this judgment। अब देखिए पहले मैं सेक्शन 73 के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बात कर लेता हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है, कि देखिए गिविंग और फिंगर इंप्रेशन और स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट टू बी एन एविडेंस अगेंस्ट वन सेल्फ, क्योंकि टू बी अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट by means of a oral statement or a statement in writing by a person who has personal knowledge of the facts to be communicated to a court or to a person holding an inquiry or investigation. A person is said to be a witness to a certain state of fact which is to be determined by the court or authority authorized to come to a decision by testifying as to what he has seen or something he has heard which is capable of being heard. अब काली काठू औगड़ के जजमेंट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काली काठू औगड़ रिफर टू द केस ऑफ MP शर्मा, एंड इन दैट ऑल्सो इट वॉज आंसर्ड, इन दैट जजमेंट इट वॉज ऑल्सो आंसर्ड, एंड काली काठू औगड़ जजमेंट ऑल्सो reiterated the same position that prohibition contained in clause 3 of article 20 covers not only oral testimony but also written testimony। जैसे वो ओरल ही टेस्टिमनी नहीं चलेगी, उसमें रिटन टेस्टिमनी भी होती है। अब जो एक स्पेसिमेन हैंड राइटिंग और सिग्नेचर या फिंगर इंप्रेशंस जो होते हैं दे आर बाय देमसेल्व्स नो टेस्टिमनी एट ऑल, अपने आप में वो कोई टेस्टिमनी थोड़ी ना होते हैं, बिकॉज दे आर अनचेंजेबल एक्सेप्ट इन द रेयर केसेस वेयर द रिजेस ऑफ द फिंगर और द स्टाइल ऑफ राइटिंग हैज़ बीन टेम्पर्ड विद। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशन अपने आप में कोई टेस्टिमनी नहीं कहलाती है। अगर कोर्ट कह रहा है किसी पर्सन से कि कुछ भी लिखो सो दैट आई कैन कंपेयर द हैंड राइटिंग विद सम अदर हैंड राइटिंग, एक आपकी दूसरी हैंड राइटिंग इन क्वेश्चन है, आप कुछ हमारे सामने लिखो जिससे हम ये कंपैरिजन कर सकें, तो टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं हो जाता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर डिस्कसिंग ऑन द इशू ऑफ टेस्टिमोनियल कंपल्शन और बाकी बातें करके उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे जो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट था कि एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ सिंपली बिकॉज ही मेड अ स्टेटमेंट व्हाइल इन पुलिस कस्टडी विदाउट एनीथिंग मोर। In other words, the mere fact of being in police custody at the time when the statement in question was made would not by itself, as a proposition of law, lend itself to the inference that the accused was compelled to make a statement, though that fact, in conjunction with any other circumstances disclosed in evidence in a particular case, would be relevant to consider in an inquiry whether or not the accused person had been compelled to make the imputed statement. Secondly, the mere questioning of an accused person by a police officer resulting in a voluntary statement which may ultimately turn out to be incriminatory is not compulsion. Third, to be a witness is not equivalent to garnishing evidence in its widest significance, that is to say, including not merely oral or written statement but also production of documents or giving materials which may be relevant at a trial to determine guilt or innocence of the accused। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि टू बी अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ एज इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज नॉट इक्विवेलेंट टू गार्निशिंग और मार्शलिंग और कलेक्शन ऑफ एविडेंस।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड गार्निशिंग ऑफ एविडेंस यूज़ किया है, मैं उसे आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फोर्थ पॉइंट इज गिविंग थंब इम्प्रेशंस और इम्प्रेशंस ऑफ फुट और पाम और फिंगर और स्पेसिमेन राइटिंग्स और showing parts of body by way of identification are not included in expression to be a witness, जैसा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में यूज्ड हुआ है। फिफ्थ इज टू बी अ विटनेस मीन्स imparting knowledge in respect of a relevant fact by an oral statement or a statement in writing made or given in court or otherwise. Sixth is to be a witness in its ordinary grammatical sense means giving oral testimony in the court, but case law has gone beyond strict literal interpretation of the expression, which now has a wider meaning, namely bearing testimony in court or out of court by the person accused of an offence, either by orally or in writing. Seventh is to bring a statement in question within the prohibition of Article 20 Clause 3. The person accused must have stood in character of an accused person at the time when he made the statement. It is not enough that he should become an accused any time after the statement has been made. अब ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और ये 11 जजेस की बेंच का जजमेंट था, तो ऑफ कोर्स इसमें एक और ओपिनियन है, डिसेंटिंग ओपिनियन 3 जजेस का था। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि जस्टिस एस.के. दास सरकार और जस्टिस दास गुप्ता ने एक सेपरेट ओपिनियन दिया था। दे कंकर्ड विद द मेजॉरिटी से कंकर किया था, बट दे गेव अ सेपरेट ओपिनियन। और कॉन्करेंस देने के बाद और अपनी थोड़ी सी रीजनिंग देने के बाद, उनकी रीजनिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी बट इट रीच द सेम कंक्लूजन, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉइंट्स पढ़ा, मेजॉरिटी के जो भी पॉइंट्स पढ़े वैसा ही उनका भी कंक्लूजन था। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, ये रेलेवेंट है। उन्होंने ये बोला कि देखिए, अभी हमारे पास ये सवाल नहीं है कि क्या अक्यूज्ड जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, क्या वो प्रोटेक्शन उस पर तब ऑपरेट होगा जब पर्सन अक्यूज्ड बन चुका है या अक्यूज्ड बनने की स्टेज के पहले होगा। उन्होंने बोला कि देखिए, हमें इस क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन रेज्ड इनटू एन इशू और मेड एन इशू, तो इस पे हमें अपना ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। साथ में ये भी बोला कि जितने भी केसेस इस पॉइंट पे हमारे पास अभी रेफरेंस पे हैं, जिस पे हम जजमेंट दे रहे हैं, उन सारे सिचुएशन में फिंगर इम्प्रेशन और स्पेसिमेन सिग्नेचर तभी लिया गया है व्हेन ही हैज़ एक्चुअली बिकम एन अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड बनने के बाद ही स्पेसिमेन सिग्नेचर या इम्प्रेशन ऑफ फिंगर्स या पाम्स एक्सेट्रा लिया गया है। तो कोर्ट ने बोला, मतलब ये जो कंकरिंग ओपिनियन था उसमें बस एक छोटा सा वार्निंग डाल दिया कि देखिए, अभी वो क्वेश्चन हमारे पास आया नहीं है कि क्या आर्टिकल 23 का बार अक्यूज्ड बनने के पहले भी होता है या अक्यूज्ड बनने के बाद ही ऑपरेट करेगा, तो उस पर नहीं आंसर देते हैं अभी कंक्लूसिवली। लेट अस लीव दिस इशू फॉर द फ्यूचर। तो वो जो 7th पॉइंट था ना, जो मेजॉरिटी ने होल्ड किया था, टू ब्रिंग द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन within the prohibition of Article 20 Clause 3, the person accused must have stood in the character of an accused person at the time when he made the statement. It is not enough that he should become an accused any time after the statement was made. इस कंटेक्स्ट में आपको मैं बस ये बात बताना चाहता था कि एक इकलौता कंक्लूजन है जिस पे दे हैव नॉट अग्रीड, मतलब एक तरीके से यही बोला है कि इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर अस टू प्रोनाउंस अ जजमेंट। आपको इसमें क्या याद रखना है, मेन यही याद रखना है कि हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस लेना इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। अब ये है कि हाउ वुड द कोर्ट एक्सरसाइज इज जुडिशियल डिस्क्रेशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 73। उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन हमने सेक्शन 45 और सेक्शन 47 जब हैंड राइटिंग का ओपिनियन बता रहा था और उसकी रेलेवेंसी बता रहा था तो थोड़ा डिस्कस किया था। वापस जाइए उस केस पे। इनफैक्ट आई हैव कोटेड द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ दैट केस लॉ इन योर स्टडी नोट्स, मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका जजमेंट था। उसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि कोर्ट शुड नॉट वेंचर टू कंपेयर राइटिंग इटसेल्फ
as it would thereby assume itself the role of an expert. ये आर्ग्यूमेंट लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस आर्ग्यूमेंट इज entirely without force because section 73 of the Evidence Act expressly enables the court to compare disputed writings with that admitted or proved writings to ascertain whether the writing is that of a person by whom it purports to have been written. If it is hazardous to do so, as sometimes said, we are afraid that it is one of the hazards to which the judge and the litigant must expose themselves whenever it becomes necessary. Now, there may be cases where both sides call experts and two voices of science are heard. There may be cases where neither side calls an expert, being ill able to afford him. In such cases, it becomes the plain duty of the court to compare the handwritings and come to its own conclusion. The duty cannot be avoided by the recourse to the statement that court is no expert. Where there are expert opinion, they will aid the court. Where there is none, the court will have to seek guidance from some authoritative textbook and the court's own experience and knowledge. But in either scenario, the court has to discharge its duty with or without expert or with or without other evidence. So this is the criteria through which the honorable judge will decide his discretion as to when the occasion arises to compare the signature, handwriting, finger impression, etc. उसको लगता है कि फैक्टर सर्कमस्टेंसेज में ही शुड डू इट, देन ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी. जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो उसको एड कर रहे हैं, द कोर्ट बिलीव्स इट, देन ऑफ कोर्स ही वुड नॉट वेंचर इनटू कंपेयरिंग द हैंड राइटिंग हिमसेल्फ जब एक्सपर्ट अवेलेबल है. लेकिन जब एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल है, देन द कोर्ट में रिजॉर्ट टू अ टेक्स्ट बुक एंड कंपेयर द हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस हिमसेल्फ. और सेक्शन 73 के कंटेक्स्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन के प्रोविज़न तभी अप्लाई करते हैं व्हेन अ मैटर इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट, नॉट अदरवाइज. ठीक है, सेक्शन 73 वुड ओनली अप्लाई व्हेन द मैटर इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट. तो देखिए, एज अ डायरेक्शन टू द अक्यूज्ड और एनी अदर पर्सन टू गिव अ स्पेसिमेन हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन can only be issued by the court who is holding either an inquiry under a CRPC or holding a trial of the accused person. ठीक है, उसी सिचुएशन में कर सकता है. जनरली ये जो सेक्शन 73 है, जनरली क्या, इन ऑल द केसेस इट डज नॉट अप्लाई ऑन द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. उसी लैक्यूना को फिल करने के लिए लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 311A कि इन्वेस्टिगेशन या बाकी की प्रोसीडिंग्स में मैजिस्ट्रेट चाहे तो स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज्ड पर्सन शुड हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन. लेजिस्लेचर ने ट्रायल और इंक्वायरी की बात सेक्शन 311 में इसीलिए नहीं की क्योंकि सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी एम्पावर्स द कोर्ट टू डू सो. दैट इज वाई लेजिस्लेचर नेवर थॉट टू वेस्ट वर्ड्स ऑन दैट. आप हमेशा याद रखिएगा, वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रिजर्वम, फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉ देर इज नो डिपार्चर. और लेजिस्लेचर जब भी कुछ लिखता है तो उसके पीछे बड़ी सब्सटैंशियल रीजनिंग होती हैं. तो वो जो ओमिशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल शब्द है ना 311A में, वो लेजिस्लेचर ने इसीलिए ओमिट किया क्योंकि सेक्शन 73 ऑलरेडी कवर्स दैट सिचुएशन. और जिसको नहीं कवर कर रहा था उसको सेक्शन 311A ऑफ द CRPC ने कवर कर लिया. ठीक है, अब सेक्शन 73A बस बताता है कि हाउ वुड यू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर, हाउ वुड यू प्रूव इट. उसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर प्रीलिम्स में आ सकता है 73A किस बारे में बात करता है. प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट करिएगा, मेंस में आने नहीं वाला. अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की. सेक्शन 74 says that the following documents are public documents: document forming the acts or record of the act of sovereign authority, of official bodies and tribunals, and public officers, legislative, judicial and executive of any part of India, of the Commonwealth or of foreign country. And subsection 2 of section 74 says public records kept in the state of private documents. तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा. लेकिन ये आता सिर्फ बेयर एक्ट लेवल पे, इस पर कोई नुआंस या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ये बेयर एक्ट लेवल पे ही आएगा, तो लेकिन बेयर एक्ट लेवल पे भी आपको तैयार रहना है.
बेयर एक्ट तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ उसके किसी भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा उस पर। अब देखिए डॉक्यूमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे वो प्राइवेट कहलाते हैं। वो आप जैसे सेक्शन 75 देखेंगे दैट वुड बी क्लियर टू यू। अब देखिए सेक्शन 74 टू 78 दो चीज़ों से डील करेंगे, फर्स्ट द नेचर ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड सेकेंडली द प्रूफ विच इज टू बी गिवन ऑफ देम। नाउ सेक्शन 74 विल डिफाइन द नेचर ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट and section 76 to 78 deal with the exceptional mode of proof which is applicable in their case. The proof of private document, however, is subject to the general provisions of the Evidence Act to the proof of documentary evidence, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, that you have to go by in accordance with the section 67 to 73. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में मेन डिफरेंस क्या है। पहले चीज़ ध्यान रखिएगा कौन प्रिपेयर करता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और पब्लिक ड्यूटी, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट और इन परसुएंस ऑफ हिज इंडिविजुअल राइट। सेकेंडली, पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द पब्लिक एट एनी टाइम and after payment of a fixed fees that is applicable, while a private document in the hands of an individual does not belong to the public and does not belong to the availability of inspection for the general public. Then public documents are proved by secondary evidence, वो certified copies ही चलती है। However, private documents are proved by original generally, that is by primary evidence. अब देखिए ये जनरल रूल बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट था वही कोर्ट में ले आया जाए, लेकिन जनरली लाया नहीं जाता, उसको सेकेंड सर्टिफाइड कॉपी ही लगाई जाती। तो जनरली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस, दैट इज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी जनरली प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, और फिर एंटाइटलमेंट होना चाहिए सेकेंडरी एविडेंस देने का। फिर certified copy of a public document is to be admitted in judicial proceedings and of no other kind, while in case of secondary evidence of a private document, clause ACD of section 65 may apply. Ab there is a presumption in the favor of certified copies of public document. The court is bound to presume the genuineness of a public document which is duly certified, while in case of private document there is no such presumption except for the limited category in exceptional cases. कुछ illustrations दे देता हूँ आपको कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल रोल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपको किसी भी मैटर इन इशू में मान लीजिए उसकी ज़रूरत पड़े है, देन यू कैन सबमिट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट इलेक्टोरल रोल, और वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से। फिर सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। टाउन प्लानिंग रिपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। विलेज रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट। रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनल बैंक, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, चार्जशीट, confessions recorded under section 164 of the CRPC, sanction to prosecute, medico-legal report, record of an information under section 145 of CRPC, notice under section 106 of the CRPC, certified copies of the order of the civil court, decree of the civil court, and FIR, charge sheet. These are also public documents. Hindu marriage register, public document. स्पेशल मैरिज एक्ट रजिस्टर, दैट ऑल्सो, उसके भी एक्सट्रैक्ट्स और वो पूरा रजिस्टर इट सेल्फ इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेडिको लीगल रिपोर्ट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसको कहते हैं MLC रिपोर्ट, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया था दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट में। अब ऐसे में कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। एक ध्यान रखिएगा, विल इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। विल जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है इवन इफ इट इज़ रजिस्टर्ड। वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न इज़ ऑल्सो नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट।
एक सवाल बहुत आ सकता है कि क्या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. Certified copy of a will is not a public document within the meaning of section 74. What can be the other example of private documents apart from certified copy of a will? Income tax return, contract, leases, mortgage deeds, etc. These are your private documents. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक केस में हेल्ड किया है कि रजिस्टर पावर ऑफ अटर्नी इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. उन्होंने भी ये हेल्ड किया है. केस का नाम है बिधान BIDHAN पॉल वर्सेस परेश चंद्र घोष AIR 2002 गुवाहाटी, पेज नंबर 46 साइटेशन है इसका. तो बेसिकली ये बस आपको इलस्ट्रेशन देने के लिए, आपको याद कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस जानने की ज़रूरत है. इसमें जानकारी आपको अपडेट करने की ज़रूरत है. एक बहुत अच्छा जजमेंट था जो मैंने पढ़ा था मद्रास हाई कोर्ट का, रंगाराजू वर्सेस कनायल. इट वॉज डिसाइडेड ऑन 10 जनवरी 2012. अब इस जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बड़ी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. बिफोर द कोर्ट होल्ड्स अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो इन चीज़ों को देखता है. क्या चीज़ें देखता है? अब देखिए, उन्होंने एन्यूमरेट किया. A document cannot be said to be a public document within the meaning of section 74 unless it is shown to have been prepared by a public servant in discharge of his official duty. पहला, इस ऑब्जर्वेशन में आने के लिए उन्होंने SV चिमनलाल के केस को कोट किया. सेकेंडली, whenever there is a duty to record official doings, the record thus kept is admissible, and as a general principle it may be laid down that whenever there is a duty to do so, then there is also a duty to record things done. Then a public document is the one made by a public officer for the purpose of public making use of it, and so that the public would be able to refer to it. Then it said that the rule as to public document that it is that the rule as to public document is that the publicity must be contemporaneous, and publicity means such publicity as would afford an opportunity of correcting anything that is wrong. Then the test of publicity is that the public are interested in it and are entitled to see it, so that if there is anything wrong in it, they are entitled to protest. Then when a public has a right to inspect the official document, it becomes a public document, and the certified copy of the same will be given to that person who has applied for it, provided his right of inspection is not taken away by the other provisions of Indian Evidence Act or by any other law as opined by this court. As a matter of fact, certified copy of a public document need not be proved by calling a witness, as per the decision of Honorable Supreme Court in the case of Madam Manchi versus Muthalar. अब हम जरा सेक्शन 76 भी देख लेते हैं. सेक्शन 76 कहता है, and it gives us the method of getting certified copies of public document from the public officer. It says that if a public document is open to inspection, its copy may be issued to any person who is demanding it, and the copy of the public document is issued on the payment of legal fees, and a certificate shall be attached thereof containing the following particulars: A, that it is a true copy; B, the date of the issue of the copy; C, the name of the officer and his official title; D, the seal of the office; and E, that it must be dated. अभी जो पर्टिकुलर्स हैं ये मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ. ये जो ABCD बोल रहा हूँ ये सेक्शन में नहीं लिखा है, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इंटायरली बाय मी. जब ये पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी पे, तभी उसे कहा जाता है दैट इट इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी. इसी वजह से हाई कोर्ट्स अक्सर कहते हैं कि वेदर अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसके लिए बस ये देखना होगा कि if a person has the right to inspect the document, then in that situation he would also be entitled to get the copy of the public document. And if he has no right to inspect the document, then he cannot get a copy of public document. अब इस context में section 77 कहता है कि how would you prove the documents by protection of certified copy. Section 77 merely says that certified copies may be produced in proof of the contents of the public document or parts of the public documents of which they purport to be copies. अब सेक्शन 78 हमें 6 काइंड्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है. फर्स्ट इज सेंट्रल एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन.
इसको कौन सर्टिफाई करेगा? हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न. सेकेंड इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द जर्नल ऑफ दोज बॉडीज और कॉपीज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट. अब जो ये पॉइंट है ना, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर बाय जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली और बाय पब्लिश्ड एक्ट और एक्सट्रैक्ट्स और प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न, ये सेक्शन 78 में इस कंटेक्स्ट में बोला गया है कि ये कैसे प्रूव होंगी. कि मतलब आपने अगर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर को लेके एविडेंस देना है तो जर्नल ऑफ दोज बॉडीज और कॉपीज प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी जर्नल आप प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, देन इट शुड बी प्रिंटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सिमिलरली प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन इशूड बाय हर मैजेस्टी और प्राइवी काउंसिल, देन उसकी कॉपीज़ आप किसके अंडर होनी चाहिए? बाय कॉपीज़ एंड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लंडन गेजेट. लंडन गेजेट के थ्रू इफ़ यू कैन ऑब्टेन इट, देन दैट्स फाइन. You can prove a public document that way. Similarly, the acts of executives and the proceedings of foreign legislature by the journals published by their authority. उनकी authority में अगर वो journal publish हुआ है या copy certified under the seal of the country or sovereign और there is a recognition of their under central act, तो उसके through आप prove कर सकते हैं वो public document. Then comes the issue of municipal body proceedings. Then these publications जो म्यूनिसिपल बॉडी प्रोसीडिंग से रिलेट करती हैं, दे मस्ट बी सर्टिफाइड बाय whom? बाय देयर लीगल कीपर. अब पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री माइट बी प्रूव्ड बाय द ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी इशूड बाय द लॉफुल अटेंडेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विद अ सर्टिफिकेट एंड सील ऑफ अ नोटरी पब्लिक, इंडियन काउंसिल और डिप्लोमेटिक एजेंट. ये 6 तरीके हैं. अब देखिए इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन 78 आपको क्या बताता है? वो बताता है कि फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड, साबित किए जा सकते हैं ऐसे. किस तरीके से साबित करेंगे? ये 6 तरीके के पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कैसे साबित करेंगे वो बता रहे हैं. जैसे सेंट्रल एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन, तो दोज शुड बी सर्टिफाइड बाय द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न. ठीक है, तो इन सारे सेक्शंस पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड मत करिएगा, ये बस अवेयरनेस के लिए आपको दिमाग में रखने हैं. अब इस कंटेक्स्ट में आपको एक केस बताता हूँ, मतलब 78 के कंटेक्स्ट से हट के पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट में एक केस बताता हूँ. तुकाराम एस डी गोल वर्सेस मानिकराव शिवाजी, डिसाइडेड ऑन 5 फरवरी 2010. अब इसमें जो इशू था वो ये था कि जो VHS कैसेट जो इलेक्शन कमीशन से ऑब्टेन की गई थी, क्या वो अज्यूम कर लेनी चाहिए कि इट इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी इशूड बाय एन इलेक्शन कमीशन एंड इज देयर बाय अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट. इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो डिस्प्यूट दैट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय अ इलेक्शन कमीशन वुड बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. हाउएवर, द appellant in this case had failed to produce even the receipt stated to have been issued by the election commission's office, and the tribunal against whom's order the appeal was brought to the Supreme Court. The Supreme Court observed that the tribunal held that the mere production of the cassette with the election petition would not lead to inference that it has been produced in evidence, and being a public document, it was not required to be proved. And having perused the material on record, the word used here is perused means examined. Having perused the material on record, we are in complete agreement with the tribunal that in absence of any cogent evidence regarding the source and manner of its acquisition, the authenticity of the cassette was not proved, and it could not be read in evidence despite the fact that cassette is a public document. फिर एक दूसरा इशू भी था सुप्रीम कोर्ट के सामने. उस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट टेप रिकॉर्ड्स आर स्पीचेज or tape records of speeches are documents as defined under Section 3 of the Indian Evidence Act and stand on no different footing than a photograph. Here is also no doubt that new techniques and devices are the order of the day. Audio and video tape technology has emerged as a powerful medium through which the first-hand information about an event can be gathered and in a given situation may prove to be a crucial piece of evidence. At the same time, with fast developments in electronic techniques, the tape cassettes are more susceptible to tampering and alteration by transposition, excision, etc., which may be difficult to detect, and therefore such evidence has to be received with caution.
that it would neither be feasible nor advisable to lay down any exhaustive set of rules by which the admissibility of such evidence may be judged, but it needs to be emphasized that to rule out the possibility of any kind of tampering with the tape, the standard of proof about its authenticity and accuracy has to be more stringent as compared to any other documentary evidence. The main point पब्लिक डॉक्यूमेंट्री कंटेक्स्ट में ये था कि मेयरली अगर आप मान लीजिए एक इलेक्शन पिटीशन के साथ एक VHS टेप ले आए और फिर बोले कि इलेक्शन कमीशन से हमने ऑब्टेन किया है, अब वहाँ पे प्रॉपरली कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट द VHS टेप हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एन इलेक्शन कमीशंस ऑफिस एंड हेंस इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि देयर हैज़ टू बी अ कोजेंट एविडेंस रिगार्डिंग द सोर्स एंड मैनर ऑफ इट्स एक्विजिशन, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैसेट एंड ऑल दैट. अगर वो सब चीज़ें नहीं प्रूव हुई है then that cassette cannot be read in evidence, even though any document that has been obtained by election commission would be a public document, that has been obtained from election commission would be a public document. इस बात में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए. यहाँ पे फैक्ट्स पे कोई भी रेलेवेंट मटेरियल ऐसा नहीं था जो ये दिखा सके कि ये कैसेट ऑब्टेन कैसे किया गया. मेयरली शोइंग द इलेक्शन पिटीशन अलॉन्ग विद द VHS टेप इज़ नॉट सफिशिएंट. इस केस में तो इन्होंने अपेलेंट ने तो रिसिप्ट तक नहीं डाली थी जो बोल लेते इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से ऑब्टेन की है. देयर वाज नॉट इवन अ रिसिप्ट. सो द सुप्रीम कोर्ट नेवर थॉट दैट एनी रिलायंस शुड बी पेड टू सच VHS टेप. यही डिसीजन जो था वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी था. अब एक बात का ध्यान रखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट जिसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल बोल रहा है दैट वाज एक्चुअली द बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि वो इलेक्शन पिटीशन सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू बॉम्बे हाई कोर्ट एज द ट्राइब्यूनल इन दिस केस. नाउ वी शुड जस्ट क्विकली हैव अ लुक एज टू प्रिजम्पशंस ऑफ डॉक्यूमेंट. तो सेक्शन 79 में आपका है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज. अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी है या कोई अदर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन अ पर्टिकुलर फैक्ट, इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं, उनको कोर्ट जेन्युइन मानेगा. अब ये जो सेक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैक्सिम कॉल्ड ओमनिया प्रेजेम्प्टर राइट एसे एक्टा. इसका मतलब होता है ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन. ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है बट नॉनदलेस प्रिजम्पशन रहता है. ये बहुत पुराना लॉ है कि वेयर अ पर्सन एक्ट्स इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ये मान लिया जाता है कि इट वाज प्रिज्यूम टू हैव बीन राइटली डन, उसके खिलाफ कभी प्रिजम्पशन नहीं होता. ऑफ कोर्स ये शैल प्रिजम्पशन है तो कोर्ट इज मैंडेटेड टू प्रिज्यूम इट बट इट इज़ रिबटेबल एट द एंड ऑफ द डे. कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं है पर ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है. इट इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. अब सेक्शन 79 से 90 तक आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ये प्रिजम्पशंस की बात करेगा प्राइमरली, 90A तक टू बी प्रिसाइज, लेकिन यहाँ पे अब प्रिजम्पशंस हैं. अब सेक्शन 85C, अब सेक्शन 79 से 85C और सेक्शन 89 में आपके शैल प्रिजम्पशन है और बाकी 86 से 90A तक आपके मे प्रिजम्पशन है. ऑफ कोर्स आई एम एक्सक्लूडिंग 89 में शैल प्रिजम्पशन है. 89 आपको ऐड करना है उसके साथ 79 to 85C प्लस 89, ये यहाँ पे आपके शैल प्रिजम्पशन है, मैंडेटरी प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ हैं. और बाकी 86 से लेके 90A तक आपके मे प्रिजम्पशंस हैं. अब सेक्शन 80 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. इट सेज व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by the judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume. अब देखिए प्रिजम्पशन किस चीज़ों को लेके है. पहला, that a document is genuine, that the statement as to circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, and
that is second, such evidence, statement or confession was duly taken. ठीक है, presumption इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई होगा. This section is applicable A to a document which purports to be the record of the memorandum of evidence given by a witness in judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, and B to a statement or confession made by an accused person taken in accordance with law and signed by the judge or magistrate. अब this section is wider than section 79 because section 80 embrace not only the genuineness of the document but also that it was duly taken and given under the circumstances recorded in the document. This fact alone makes it wider than section 79 which only presumes the genuineness of the document. ठीक है, अब ये section क्या करता है? It dispenses with the necessity of formal proof in case of certain documents which has been taken in accordance with law. If at all a document has not been taken in accordance with law, then this section and its presumption will not operate. ये जो section है ये भी based है on the maxim omnia presumpta right esse acta. All official acts are deemed to be rightly performed. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा. Section 80 में court will presume that a confession was duly recorded and the circumstances under which such confessions were recorded has been written by the magistrate after complying with the procedure of 164 of the CRPC. Section 80 कहीं पे भी ये नहीं कहता that there would be a presumption of voluntariness of the confession. ये बात याद रखिएगा. तो मान लीजिए अगर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया है तो सेक्शन 80 के बेसिस पे कोई भी जज ये नहीं अज्यूम कर सकता है कि कन्फेशन वाज वॉलंटरी. ठीक है, उसका प्रिजम्पशन नहीं होता है इसमें, इस बात को लेके ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये प्रिजम्पशन सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड का है और जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रिजनर या कन्फेशन लिया गया या कोई भी रिकॉर्ड और मेमोरेंडम बनाया गया ऑफ द एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन सारी चीज़ों को लेके कि जिन सर्कमस्टेंसेस में वो बताया जा रहा है वो सर्कमस्टेंसेस एकदम सही हैं, तो फॉर्मल प्रूफ से ये डिस्पेंस करता है. ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कन्फेशन की बात हो रही है तो कहीं भी ये प्रिजम्पशन नहीं मानेगा कोर्ट कि जो कन्फेशन जो दी गई है वो वॉलंटरली है. इसका प्रिजम्पशन नहीं होता है, याद रखिएगा. आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज सेक्शन 80 कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि कन्फेशन वॉलंटरली गिवन है. नो, कि मैजिस्ट्रेट ने 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड की और कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वो जो सर्टिफिकेट लिखता है 164 में कि आई हैव वार्नड द अक्यूज पर्सन एंड आई हैव रीजन टू बिलीव दैट ही इज़ वॉलंटरी गिविंग दैट, तो आपने ये मान लिया कि अगर उसको लेके प्रिजम्पशन है तो इसको भी लेके प्रिजम्पशन होगा कि कन्फेशन वाज वॉलंटरी गिवन. नो, उसको लेके प्रिजम्पशन नहीं है कि कन्फेशन वाज वॉलंटरी गिवन. ये section is only applicable first to a document which purports to be the record of the memorandum of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any official authorized by law to take such evidence, and secondly to a statement or confession of an accused person taken in accordance with law and signed by a judge or magistrate. प्रिजम्पशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है और सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वॉज ड्यूली टेकन. बस अब यहाँ पे वॉलंटरीनेस ऑफ द कन्फेशन की बात नहीं हो रही है, तो प्लीज डू नॉट रीड इट इनटू इट, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है. दैट इज व्हाई आई एम हार्पिंग अपॉन इट. इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए इट इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि इट शुड सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ उस एक्सप्रेशन के बारे में. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन यूज है टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ अंडर सेक्शन 80. इसका मतलब है कि अगर प्रोसीजरल लॉ में कोई बात बताई गई और वैसे कंप्लाई करके जज साहब नहीं चले हैं, मैजिस्ट्रेट नहीं चले, तो सेक्शन 80 नहीं अप्लाई करेगा. तो मान लीजिए एक कोई विटनेस है, आपको पता है विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद द सेम इज रेड ओवर टू हिम.
और मान लीजिए दिस थिंग इज़ नॉट कंप्लाइड विथ, सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन नहीं लगेगा अगर उसका ट्रायल पर्जरी का फिर हो रहा है उसके बेसिस पे। तो सिमिलरली अगर कन्फेशन के साथ 164 में मान लीजिए कन्फेशन रिकॉर्ड की गई है, साथ में मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट नहीं आया है जो बताता है कि मैजिस्ट्रेट के बिलीफ में द कन्फेशन वॉज फ्रीली एंड वॉलंटरली मेड, तो ऐसी सिचुएशन में भी सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन नहीं अप्लाई होगा। तो जितने भी लीगल प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं उनसे कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑर्डर 18 रूल 5 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीसी। और कन्फेशन की अगर बात कर लें तो सेक्शन 164, सर्टिफिकेट मान लीजिए मिसिंग है, सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन ही नहीं लगेगा। वंस अगेन आई विल रिइटरेट कि सेक्शन 164 सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में, कन्फेशन रिकॉर्डिंग के कंटेक्स्ट में, अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होती है और प्रॉपर सर्टिफिकेट है एसेट्रा एसेट्रा सारी चीज़ें हैं, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट जो मैजिस्ट्रेट ने बनाया है एंड विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर मी एज अ कन्फेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन, ये जेन्युइन है। और दूसरा ये दैट इट वाज ड्यूली टेकन एंड एक्चुअली टेकन। ये यहाँ पे इस बात का प्रिजम्पशन नहीं होता कि ये कन्फेशन सच है, ठीक है, इस बात का प्रिजम्पशन नहीं होता, इट इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ ट्रुथ। और इस बात का भी प्रिजम्पशन नहीं होता दी कन्फेशन वॉज वॉलंटरली मेड। सिर्फ इतना ही प्रोसीजरल बातों का लेके प्रिजम्पशन होता है कि इट वॉज ड्यूली टेकन and that the document is genuine. Now there is section 81, that is presumption as to gazette, newspapers, private acts of the parliament, etc. Now this section has to be read with section 35 and section 37 of the Indian Evidence Act, ठीक है। उसी के कंटेक्स्ट में ये भी अगर रिलेवेंसी से थोड़ा रिलेट करता है कि क्योंकि गैजेट के स्टेटमेंट कैसे रिलेवेंट होंगे वो सेक्शन 37 बताता है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, उन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है और ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फिर सेक्शन 81 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये मैंडेट करता है कोर्ट को टू प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज़ purporting to be an official gazette or purporting to be an electronic record directed by law to be kept by any person if such electronic record is substantially in the form required by law and is produced from proper custody। अब सेक्शन 82 कहता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। अब ये जो सेक्शन है इट इनेबल्स द कोर्ट टू रिकॉग्नाइज प्रिजम्पशन विद रिगार्ड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लिश और यूके कोर्ट्स। द कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम पहला दैट द सील और स्टैम्प और सिग्नेचर इज जेन्युइन, एंड दूसरा दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हेल्ड एट द टाइम व्हेन ही साइंड द जुडिशियल और ऑफिशियल कैरेक्टर विच ही क्लेम्स। Then we come to section 83, presumption as to maps or plans made by authority. This has to be read with section 36 of the Indian Evidence Act. अब जो presumption है section 83 में, that is its accuracy is limited only to maps or plans made under the authority of the government. उसके आगे नहीं। Now we come to section 84, presumption as to collection of laws and reports of decision. This section has to be read with section 38, which makes relevant statements as to any law and rulings contained in officially printed books of any country. And what would be the presumption? Presumption would be with regard to genuineness of every book which is printed or published under the authority of the government of any country and holds and contains the laws of that country, ठीक है, या contains the report of the decisions of the courts in such country। उसकी genuineness को लेके ही presumption होगा। अब सेक्शन 85 जो है वो मैंडेट करता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम द ड्यू एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एवरी पावर ऑफ अटर्नी व्हेन इट हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय अ नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट जज मैजिस्ट्रेट इंडियन काउंसिल और वाइस काउंसिल। अ पावर ऑफ अटर्नी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर इंडियन स्टैम्प्स एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 21। It says power of attorney includes any instruments empowering a specified person to act for and in the name of the person executing it. Notary public क्या होता है? Notary public is an officer who takes notes of anything which may concern the public. He attests the deeds or writings to make them authentic. अब we come to section 85A, वो presumption with regard to electronic agreement रखता है और बस उसमें इतना सा presumption है कि electronic agreement was concluded by affixing electronic signature of the parties.
85B और 85C उतना मैंडेटरी नहीं है, एक्सेप्ट उनकी हेडिंग्स का ध्यान रखिएगा. कभी कभी बस ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि 85C में प्रिजम्पशन किसको लेके है. तो 85B में प्रिजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेके, और 85C में प्रिजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेके. तो क्वेश्चन इन चीज़ों से आ जाता है. प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट करिएगा 2 तरीके के क्वेश्चन, और दोनों ही बेयर एक्ट से होंगे. इसके टाइटल नंबर का, और कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस हुआ. या ये भी सवाल आ सकता है कि इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ विच ऑफ द स्टैट्यूट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008. ऐसे कुछ सवाल आ सकता है. इसके लिए आप फुट नोट ज़रूर पढ़िएगा अपनी बेयर एक्ट का. तो बेसिकली सेक्शन 85C एंड सेक्शन 85B and 85A were introduced by Information and Technology Act 2000, introduced. But जहाँ जहाँ भी पहले डिजिटल सिग्नेचर हुआ करता था वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा दिया गया है. तो वहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट जिसने डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में अमेंड किया था इन तीनों ही सेक्शन में, दैट वाज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, and it was brought in force on 27th October 2009. अब सेक्शन 86 पे आ जाते हैं. यहाँ पे अब मे प्रिज्यूम आ रहे हैं. अब सेक्शन 86 एम्पावर करता है कोर्ट को टू प्रिज्यूम दैट इफ अ कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड इज purported टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी, जैसा कि लास्ट पैरा ऑफ सेक्शन 86 में बताया गया है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट इट इज़ जेन्युइन और एक्यूरेट. मे प्रिज्यूम, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो प्रिज्यूम करे या ना करे. सर्टिफिकेट कैसा होगा? एनी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी और प्लेस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया और हर मैजेस्टीज डोमिनियन वुड बी अ पॉलिटिकल एजेंट, एंड इफ सच पॉलिटिकल एजेंट certifies a judicial record in a manner which is commonly used in that country for certification of judicial record, then that would suffice. अब इसमें लास्ट पैरा में डिफाइन किया गया है पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है, और पॉलिटिकल एजेंट प्राइमरली इस बात पे फोकस करेगा कि अ पॉलिटिकल एजेंट इज एन एजेंट हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी कंट्री कंप्राइजिंग एनी टेरिटरी ऑफ प्लेस. ठीक है, जो फॉरेन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वुड बी डीम्ड एज अ पॉलिटिकल एजेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 43 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो ध्यान रखिएगा, फोटोस्टैट कॉपी भी अगर आप फॉरेन कोर्ट की डिग्री के ले आए और उस फोटोस्टैट कॉपी पे वो सर्टिफिकेट है जैसे सेक्शन 86 रिक्वायर करता है कि पॉलिटिकल एजेंट हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, he has authenticated that photostat copy. In that situation court presume कर सकता है that it is a certified copy as it is required by this section. photostat copy भी चल जाएगी provided उसके साथ वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है उस पॉलिटिकल एजेंट का, और in other words the representative of the central government. वैसे ही हम अब सेक्शन 87 पे आ जाते हैं. यहाँ पे भी मे प्रिज्यूम की बात है, और प्रिजम्पशन किन चीज़ों को लेके है? Information on the matters of court may presume that the books to which it may refer for information on the matters of public or general interest, and that the published map or charts, the statement of which are relevant facts, which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place by whom at which it purports to have been written or published. ये presumption है कि किसने लिखा और किस टाइम एंड प्लेस पे लिखा. बुक और मैप और चार्ट्स की जेन्युइननेस या उसके ट्रूथफुल नेचर का प्रिजम्पशन नहीं है. प्रिजम्पशन सिर्फ इस बात का होगा कि इट वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन एट द टाइम एंड प्लेस बाय वूम एंड एट विच इट पर्पोज टू हैव बीन रिटन और पब्लिश्ड. Now we come to section 88. Section 88 says that the court may presume the message forwarded from a telegraph office to the person whom such message purports to be addressed corresponds with the message purports to be addressed corresponds with the message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission. तो presumption किस चीज को लेके है?
प्रिजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लेके बन सकता है कि जो मैसेज भेजा गया वही मैसेज रिसीव हुआ, पर प्रिजम्पशन इस चीज़ को लेके नहीं हो सकता कि किस पर्सन ने मैसेज भेजा। सेक्शन 88A उसी तरीके से यही प्रिजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस पे भी अप्लाई कर देता है, ईमेल को लेके एसेट्रा। सेक्शन 89 कहता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे सेक्शन 89 में एक जगह शैल आ जाता है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वैसे इसकी जगह अगर ये 86 से पहले इसे रख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो बड़ा सीक्वेंस में किसी को बताना आसान हो जाता। नॉनदलेस सेक्शन 89 says that the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. अब ये जो सेक्शन है इट रेफर्स ओनली टू स्टैम्प, एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके आगे नहीं बढ़ता। देन वी कैन कम टू सेक्शन 90. इट टॉक्स अबाउट अ प्रिजम्पशन that when any document purporting to be proved to be 30 years old is produced from any custody which court in particular case considers proper को mark कर लीजिए, the court may presume that signature and every other part of such document which purports to be the handwriting of a particular person is in that person's handwriting, and in case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by persons by whom it purports to have been executed and attested. Explanation: documents are said to be in proper custody को मार्क करिए। Documents are said to be in proper custody if they are in place in which and under the care of a person with whom they would naturally be, but no custody is improper if it is proved to have a legitimate origin or if the circumstances of the particular case are such as to render such origin probable. This explanation applies to section 81 as well. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, इससे पहले भी मे प्रिज्यूम की स्टेज आए कोर्ट के सामने, and before a court is justified in making a presumption in favor of the genuineness of the ancient document, it should be satisfied by other evidences that there is a good ground for accepting this document as truth, and for that the court has to be satisfied that the document is being produced from proper custody. ठीक है, कस्टडी गिवन इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पे कोर्ट को सस्पिशन हो जाए। अगर कोर्ट को सस्पिशन हुआ तो जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट को लेके प्रिजम्पशन नहीं मेक करेगा वो। देखिए सेक्शन 90 का ऑब्जेक्ट क्या है। सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू डू अवे विद द डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग द हैंड राइटिंग, एग्जीक्यूशन and attestation of the documents in ordinary way when many years have elapsed. ठीक है, ये एक तरीके से रिलैक्स करता है इन चीज़ों को कि अभी 30 साल हो गए, अब आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हैंड राइटिंग और एग्जीक्यूशन और वो सारी चीज़ें। अब प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है कई कई सर्कमस्टेंसेज में। अब मिनिमम 30 साल हैं इन ऑर्डर टू रेज द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90। कुछ स्टेट्स एक्ट में जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश की स्टेट अमेंडमेंट में जो 30 साल का पीरियड है वो 20 ईयर्स का पीरियड है, तो यूपी के एग्जाम में ये 20 ईयर्स रीड करिएगा, पर बाकी जगह ये पीरियड है 30 ईयर्स। तो मान लीजिए यूपी के अलावा आप कहीं पे भी पेपर दे रहे हैं तो 30 ईयर्स पे देखिएगा, और बाकी यूपी में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं वो स्टेट अमेंडमेंट से तो सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि अगर वो अपने स्टेट अमेंडमेंट से सवाल पूछ रहे हैं तो 30 ईयर्स वुड नॉट बी द प्रॉपर पीरियड, द पीरियड वुड बी 20 ईयर्स इन यूपी ओनली, उत्तर प्रदेश ओनली। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको दो चीज़ें प्राइमरली प्रूव करनी है इससे पहले कि कोर्ट डॉक्यूमेंट को जेन्युइन माने। पहला क्या है कि द डॉक्यूमेंट इज 30 ईयर्स ओल्ड, दूसरा क्या है इट हैज़ बीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। ये दोनों प्रूव कर दिया तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है दैट इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय whom इट्स purports टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड। ठीक है, ये दोनों अगर आपने प्रूव कर दिया तब कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो प्रिज्यूम कर सकता है इन द फेवर ऑफ द डॉक्यूमेंट। 30 साल का पीरियड कब से रेकन किया जाएगा? द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इज टू बी रेकन्ड नॉट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन कोर्ट बट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट हैविंग बीन टेंडर्ड इन एविडेंस। ठीक है, और इट्स जेन्युइननेस और अदरवाइज बिकम सब्जेक्ट ऑफ प्रूफ। सो इट इज नॉट द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन कोर्ट बट द डेट ऑन विच it was tendered in evidence, that is a determinative criteria. अब इस पे केस लॉ है मीनू सरकार वर्सेस शिदोय नाथ रॉय 1897 5 CLR पेज नंबर 135,
वाई डिड आई मैंशन दिस? आई मैंशन दिस बिकॉज ये आता है कभी कभी प्रीलिम्स में ही आता है, प्रीलिम्स के आगे नहीं आएगा। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते थे कि ये हमेशा ये टेंडर्ड इन एविडेंस क्यों राइट आंसर है, वाई द राइट आंसर इज नॉट द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। तो पीरियड ऑफ 30 ईयर्स वहाँ से क्यों नहीं कंसिडर होगा कि जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल होता है, वहाँ से क्यों कंसिडर होता है बिकॉज इट हैज़ बिन टेंडर्ड इन एविडेंस। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये जो क्वेश्चन है इट हैज़ बिन बेस्ड ऑन द केस लॉ ऑफ मीनू सरकार वर्सेस शिदोय नाथ राय, और उसी की वजह से वो एज इट इज़ प्रीलिम्स में रिप्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है प्रीलिम्स में, इसमें आप अवेयर हैं देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली बी रेज्ड विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। इट डज नॉट अप्लाई टू द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नाइदर डज इट अप्लाई टू अ फ्रेश कॉपी मेड फ्रॉम द कॉपी विच इज मेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट विच इज 30 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली ये जो प्रिजम्पशन है ये प्राइमरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए है। अगर आप मान लीजिए आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया, वो 30 साल का है, उसकी एक कॉपी बना ली, अब वो कॉपी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और आप चाहते हो उस कॉपी पे भी वैसा ही प्रिजम्पशन हो जैसा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होता, देन यू वोंट सक्सीड। अब क्योंकि ये ज़्यादातर सेक्शन अप्लाई होता है विल के केस में, हालांकि इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू विल, पर ज़्यादातर आप इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी विल के केस में देखेंगे। तो उस पर मैं आपको एक केस बता देता हूँ अभी, जिसमें हेल्ड हुआ था कि the production which entitles the court to draw the presumption as to execution and attestation of a will is of the original and not to its copy। ये केस था बसंत सिंह वर्सेस कुंवर ब्रिज सरन का, 1935 वॉल्यूम नंबर 62 इंडियन अपील्स पेज नंबर 180। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कई केसेस में रेफर किया है, ऐसे हरिहर प्रसाद वर्सेस देव नारायण प्रसाद AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 305। इट हैज़ बीन रेफर्ड इन न्यूमरस केसेस। सिमिलरली कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस डज नॉट अप्लाई टू द कॉपी और अ सर्टिफाइड कॉपी अनलेस द फाउंडेशन इज लेड फॉर द एडमिशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने लखी बरुआ वर्सेस पद्मकांता कलिता, पेज नंबर AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1253। लेकिन अब ऐसा मान लीजिए कि अगर डॉक्यूमेंट विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड वो कॉपी है ओरिजिनल की, जो सेक्शन 65 के हिसाब से एडमिसिबल होगी, रेड विद सेक्शन 63। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, दैट कॉपी हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी and is over 30 years old, then in that situation the presumption can be raised with regard to the signature authenticating the copy, ठीक है। but the production of the copy even in this case is not sufficient to justify the presumption of the execution को लेके नहीं होगा, authentication को तो हो जाएगा but not with regards to its execution। तो कॉपी को लेके ध्यान रखिएगा, मामला बहुत वीक है। थियोरेटिकली स्पीकिंग, थियोरेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये बात तो है कि हाँ प्रिजम्पशन एक्सटेंड कर सकता है सेकेंडरी एविडेंस के भी केसेस में, क्योंकि सेक्शन 90 कहीं भी नहीं कहता कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट, वो कहता है एनी डॉक्यूमेंट। जो टर्म यूज करता है वो एनी डॉक्यूमेंट यूज करता है, नॉट प्राइमरी डॉक्यूमेंट। लेकिन कोर्ट्स के जो जजमेंट हैं दे आर जनरली रिलक्टेंट to extend the entire section in its full vigor and force in the matters of secondary evidence. So as far as the copy of the document was concerned, जैसा कि मैंने illustration दिया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, आपने उसकी कॉपी बनाई and now you intend to prove it inside the court, और आप चाहते हैं कि उस कॉपी पे भी वैसा ही प्रिजम्पशन हो, तो उसको लेके वैसा प्रिजम्पशन नहीं होगा। ये तो कोर्ट ने सीधे आंसर कर दिया था, कई केसेस में आंसर किया है। अब ये विल्स और सक्सेशन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चला जाता है तो कन्वर्जेशन उधर जाने लगेगा फॉर सम रीजन, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डेल मच अपॉन इट। एक चीज़ का बस ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में बेयर एक्ट के लेवल से ही ये सब सवाल आएंगे, उससे आगे से नहीं आएंगे, ठीक है। एक और आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया है और उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, तो उसको लेके ज़्यादा अच्छा प्रिजम्पशन कोर्ट करेगा, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को लेके विच इज़ 30 ईयर्स ओल्ड एज कंपेयर टू अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट कंपेयर टू
प्राइवेट कस्टडी, उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। थियोरेटिकली स्पीकिंग तो कोई डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट रूम में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसका जो जज का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इट इज़ मोर इन फेवर ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और एन ऑथेंटिकेशन बाय अ पब्लिक अथॉरिटी विच हैज़ हैपेंड 30 years बैक और इवन बिफोर, ठीक है, उसके फेवर में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कि एक ही पैटर्निटी का इशू है, और एक ही पैटर्निटी का इशू आज से 30 साल पहले एक पब्लिक ऑफिसर ने एक डॉक्यूमेंट में सर्टिफाई किया था और बोला था कि ए का फादर बी है, लेट अस सपोज। अब बी जो है कोर्ट रूम में एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज अगेन 30 years ओल्ड, उससे भी पुराना है, लेट अस सपोज। और वो जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर कस्टडी से भी प्रोड्यूस हुआ है, उसमें ये फैक्ट है कि लेट अस सपोज बी ए का फादर नहीं है। क्वेश्चन इज ऑफ पैटर्निटी। तो कोर्ट किसको बिलीव करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट को ज़्यादा प्रेसिडेंस देगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट को इस केस में ज़्यादा प्रेसिडेंस देगा, ना कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट को। ऐसे कभी कभी केस हो जाते हैं, कास्ट मैटर्स में अक्सर ऐसे केस आते हैं, पैटर्निटी वाले इशू में, बर्थ वाले इशू में, सक्सेशन और टेस्टामेंट्री इश्यूज में बहुत ये इश्यूज आते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रिजम्पशन किस स्टेट पे क्या कहते हैं, किस स्टेज पे ले सकते हैं? अब सेक्शन 90 कहीं ये तो नहीं बताता कि प्रिजम्पशन कहाँ से होगा, क्या ट्रायल की स्टेज से हो जाएगा, या ट्रायल के मिडल में होगा, या ट्रायल की फाइनल स्टेज पे होगा। द आंसर इज दिस, दैट प्रिजम्पशन कैन बी मेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इवन एट द अपेलेट स्टेट। ये जनरल व्यू है कोर्ट्स के पास कि इवन एट द अपेलेट स्टेज अ प्रिजम्पशन कैन बी मेड इन इट्स फेवर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने लेट अस सपोज प्रिजम्पशन नहीं ड्रॉ किया तो अपेलेट कोर्ट नहीं कर सकता। दे कैन इफ दे वांट टू। लेकिन मान लीजिए अगर प्रिजम्पशन अपेलेट कोर्ट में सबसे पहली बार रेज हुआ, देन द अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी टू रिबट सच प्रिजम्पशन। अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू रिबट सच प्रिजम्पशन। ये जनरल व्यू है कोर्ट्स का, ठीक है, हाई कोर्ट्स का जनरल व्यू है, ऐसे जनरली हाई कोर्ट्स चलते हैं। खैर, then we come to the last point, that is section 90A. That is when the electronic record is produced from custody which the court considers proper, and such electronic record is 5 years old, then the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of a particular person was so affixed by him or any person authorized by him in this behalf. अभी दिस जिसमें भी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर वो प्रॉपर कस्टडी है, वो नेचुरल है एक्सेट्रा, तो द कोर्ट विल मेक अ प्रिजम्पशन फॉर प्रॉपर कस्टडी। लेकिन नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज़ प्रूव टू हैव अ लेजिटिमेट ओरिजिन, या सर्कमस्टेंस फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज में उसकी ओरिजिन प्रोबेबल होती है। तो देखिए, कस्टडी का पॉइंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज ऑफ केसेस पे होता है, उसका कट एंड ड्राइड आंसर नहीं होता। बेसिकली प्रॉपर कस्टडी को लेकर बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर कस्टडी मीन्स द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द डीड एंड हिज पोजेशन ऑफ इट डज नॉट एक्साइट एनी सस्पिशन ऑफ फ्रॉड इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अगर किन्हीं गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस में किसी पर्सन की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज में लगता है कि इट इज बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉपर प्लेस ऑफ डिपॉजिट, देन द कोर्ट वुड बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर कोर्ट को सस्पिशन होता है कस्टडी पे, एंड द कोर्ट वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। ये पॉइंट आप इलस्ट्रेशन ही पढ़ के समझ सकते हैं। इनफैक्ट आई शुड रीड द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 90। और सेक्शन 90 का इलस्ट्रेशन कहता है, ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड्स बिलोंगिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, द कस्टडी इज प्रॉपर। इलस्ट्रेशन बी कहता है, ए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द मैनेजर, द मॉर्गेजर इज इन पोजेशन, द कस्टडी इज प्रॉपर। क्योंकि वो लैंडेड प्रॉपर्टी का मैनेजर है तो उसकी कस्टडी में टाइटल डीड्स होंगी। इलस्ट्रेशन सी कहता है, ए अ कनेक्शन ऑफ बी produces deeds relating to land in B's possession which were deposited with him by B for safe custody, the custody is proper। ठीक है, बेसिकली टेस्ट प्रॉपर कस्टडी का ये है कि इट शुडंट एक्साइट सस्पिशन इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि देयर इज सम एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन दिस कस्टडी। वो लग गया तो कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं मेक करेगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे।
टुमारो विल बी डीलिंग विद सेक्शन 91 एंड 92. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है. आई ट्राई एंड मेक इट ईजियर फॉर यू. और उसके बाद एविडेंस में आई थिंक कुछ भी कॉम्प्लेक्स बचता नहीं है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.